अप्रोच है। पहले अपन भसड़ का वेट करेंगे, प्रॉब्लम का वेट करेंगे, फिर उसको हम we will sound that we are very intelligent. So first we will allow mistakes to happen, and then we will work at fixing that mistake. So it started that way. It started as a problem solving method, and that is typically how most of the world uses it even today. और इसका central idea behind Six Sigma is about fixing root causes to be able to fix the problem. Six Sigma में हम हमेशा लिखते हैं y is a function of x. Y is the problem that you want to fix, while x's are the root causes to the problem. We are saying that if you want to fix a problem so such that it does not come back to haunt us, we are saying please identify the root causes of the problem such that the root cause, once attended, problem दोबारा नहीं आएगा. So to be able to sustainably solve a problem, y is the function of x. That is the thought that we are using. And to bring home this point, I often share a very strange story about a particular museum in France. Very, very strange story. France के एक province में एक museum था, which had a strange problem. The paint on the outside of the museum would die every 2, 3, 4 months. And because it was a monument of international repute, government of France literally had no choice but to keep repainting that museum over and over again. इतने ज़्यादा विजिटर्स थे, both national and international. गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं था, हर 2-4 महीने पे पेंट कराना पड़ता था. After several such endeavors comes in a newer engineer. उसने कहा ऐसा इस म्यूजियम के बारे में खास क्या है. I have been handling monuments all across France, monuments which are built of similar material, monuments which are living in similar climatic conditions. ऐसा इस म्यूजियम के साथ खास क्या है that इसका पेंट वर्क हर 3-4 महीने में खराब हो जा रहा है. Being an engineer himself, he started to research. और जो अक्सर all of us who are from a quality background, हमको जब प्रॉब्लम दिखता है तो हमको दिखता है पेंट कुछ भी खराब हुआ, कोई भी क्वालिटी इशू आया, शायद दिस वाज स्किल इशू. जो पेंट करने के लिए हमने लोग डिप्लॉय करे थे उन्होंने अच्छे से नहीं किया, या विल इशू आता ही नहीं था. पहला. दूसरा, हम कह रहे हैं कि जानबूझ के नेग्लिजेंस था, जानबूझ के भसड़ कर दी, या शायद रॉ मटेरियल क्वालिटी या पेंट क्वालिटी इन दिस केस का इशू था. बट व्हेन ही रिसर्च फर्दर ही सॉ दैट सेम पेंट हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, सेम सेट ऑफ पीपल, बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, सेम सेट ऑफ पीपल हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं. So these three weren't the real reasons why the paint was not living their life. He started talking to his peers. ये भी इंजीनियर, बाकी दोस्त भी इंजीनियर. He did not give up. He spoke to his boss's boss. कि सर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, Would you happen to understand कि ये पेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बॉस का बॉस भी सेम कहानी, चेक कर ले पेंट का इशू होगा, चेक कर ले स्किल का इशू होगा, चेक कर ले विल का इशू होगा. ही सेड सर आई हैव वेरीफाइड ऑल ऑफ दैट. बॉस सेड छोड़ना, पेंट कर, आगे बढ़, और बहुत काम है. Almost the same night he was being served the food by the caretaker of the museum, that old man जिसको साफ सफाई के लिए रखा हुआ था. Almost sarcastically he asked the old man, दुनिया में किसी को तो नहीं पता है, would you happen to know why does the paint on the outside of the museum die so often? To his surprise, that old man immediately had an answer. बोला सर आपने ध्यान से देखा, there are thousands and thousands of pigeons here. ये पिजन्स दीवारों पे बैठ जाते हैं और दीवारों को गंदा करते हैं. और ये पिजन पोप इतना नेस्टी है कि इसको साफ करने के लिए हमको केमिकल से वॉश करना पड़ता है. दिस केमिकल वॉश इज व्हाट इज किलिंग द पेंट. Almost insulted. All of us engineers, we feel that we are the most intelligent people in the world. So इतने सारे इंजीनियर्स को जो आंसर नहीं पता था, एक अनपढ़ आदमी को पता था. हम सारे एजुकेटेड आदमी इंसल्ट हो गए.
He felt insulted that a caretaker, someone who's uneducated, knew the answer while we did not. He probed further, and why do you think there are so many pigeons here? बोला सर बहुत सिंपल आंसर है. What would a bird want? Easy food, easy shelter. हर जगह रहने का जगह जुगाड़ बना लिया इन लोगों ने. और खाना बहुत आसान है because there are way too many spiders here. फिर पूछा, and why are there so many spiders? Plus same story, sir. What would the spider want? Easy food, easy shelter. इतना पुराना म्यूजियम है, स्पाइडर्स ने अपने वेब हर जगह बिछा रखे हैं, रहना बहुत आसान है. एंड देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स कि खाना भी बहुत सिंपल है. Mesmerized, puzzled, annoyed. He started to, he said कि क्या करूं? What is your advice? How should I handle this issue? बोला सर मेरे लिए तो आंसर बहुत सिंपल है. Before you do the paint work, take care of insects, take care of spiders, take care of pigeons. Jack liked the idea. He took the necessary financial approvals. और इस बार पेंट वर्क करने के पहले इंसेक्ट्स हटाए गए, पिजन्स हटाए गए, स्पाइडर्स हटाए गए, स्पाइडर वेब्स को क्लीन किया गया, पिजन्स को भगाया गया, पिजन नेस्ट डिस्ट्रॉय किए गए. This time the story says that the paint lasted there for 3 years and 4 months. There are two morals of this story. अगर आप सस्टेनेबल तरीके से प्रॉब्लम इरेडिकेशन करना चाहते हो, the only way to do sustainable problem solving is through identification and fixing of the root causes of the problem. With me, everyone? Yeah. Yes, sir. Yes. जब तक रूट कॉज Yes. पता नहीं चलेगा, जब तक रूट कॉजेस को अपन हैंडल नहीं करेंगे, भसड़ जैसे का तैसा होगा. हर बार आप 2-4 महीने पर मनीष फ्रस्ट्रेट होंगे, जॉब चेंज कर लेंगे. किस वजह से सैलरी कम थी वो नहीं सोचा. हमने क्या सोचा, इंटरिम इलाज, फिर किसी नई कंपनी में जाएंगे, 4 महीने हैप्पी रहेंगे, 4 महीने के बाद बैक टू द स्क्वायर वन. All of us will have to realize that problem solving is only about identification and fixing of the root causes. And moral number 2, very, very important. Who knew the answer of the problem? किसको पता था रूट कॉज? केयरटेकर को. Caretaker. तो स्वाति, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर हम लोगों ने वो लिसनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर टू लिसन टू द पीपल हु आर द क्लोजेस्ट टू द प्रॉब्लम, रूट कॉज पता नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व नहीं होगा. आज गाइस विद मी? Yes. I remember my own time. I have served General Electric for a very, very long time. हमारा जी का एक कंपनी हुआ करता था यहाँ गुड़गांव में, जी कमर्शियल फाइनेंस, जो अब SBI कार्ड्स कहलाता है. SBI कार्ड्स में भयंकर अट्रिशन, अबाउट 68% 70% अट्रिशन था. मतलब 100 लोग में से 70 लोग 60 लोग हर साल छोड़ के जा रहे हैं. दे ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक करते थे, फिर थोड़ी देर में खराब हो जाता था. So they finally wrote to the G team to say that send us the experts. And I still remember that meeting. मैं बोर्ड रूम में घुस रहा था, सारे लीडर्स बैठे थे एट्रिशन के डिस्कशन के लिए. When I was entering the boardroom, I looked inside and I knew why the problem wasn't solved. At that time, I was drawing about a 74-75 lakh rupees salary. अंदर कमरे में जो लोग बैठे थे, उसमें से कोई ऐसा नहीं था जिसकी सैलरी मुझसे कम थी. तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं, रूट कॉज ढूंढने वाले हैं कि 12,000 में गुड़गांव में जॉब करना क्यों मुश्किल है. Are you guys with me? Yeah. Yes. Yes. राधिका, दी HR हेड देयर, वो बेंटले से आती थी, मुझे लगता है 4-4.25 करोड़ की गाड़ी थी वो. तो 4 करोड़ की गाड़ी से आने वाली लड़की को कभी पता चलेगा कि नॉन AC कैब में ट्रैवल करना गुड़गांव में कितना डिफिकल्ट है? No. No, Right, sir. रूट कॉज तो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा. Potentially right. And we are saying that if you don't know the root cause, how will you fix it? उस मीटिंग में कौन होना चाहिए था? उस मीटिंग में वो होना चाहिए थे जिस सब ग्रुप के लोग जो छोड़ के फेस जा कर रहे रहे हैं. हैं. Absolutely. Sitting in your plush offices, you will never know what problems exist. My son is in class 12.
he hasn't done very well in his class 12th exam. So what is the reason? किससे पूछो, बेटे से पूछो, और कोई ऑप्शन नहीं है. I'm a consultant to reckon with in the industry. लेकिन सुनील, प्रॉब्लम तो उसका है ना, उससे पूछना पड़ेगा ना. बट घर पहुंचते के साथ मैं तो फादर वाले रोल में आ जाता हूँ सुनील. राइट, मैं बताऊंगा तू सुन. राइट. एक तो मैं फादर, ऊपर से बिहारी, मतलब वो तो मतलब डबल वैमी है. तो आप ये सोच करके देखिए कि अगर आपको रूट कॉज ढूंढना है, ये तो पक्का है कि रूट कॉज जाने बिना समस्या का समाधान नहीं होगा. फुल स्टॉप. समस्या का समाधान तो तभी होगा जब हम रूट कॉज जानेंगे. रूट कॉज कैसे जानेंगे? जब केयरटेकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा. ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव नॉट बिल्ट देयर लिसनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने ऑन द ग्राउंड, मैं एक्सिस बैंक का सीईओ, लेकिन बैंक कौन डील कर रहा है कस्टमर से जो ड्राफ्ट बनाने आया था? वो टेलर पे जो बैठा था, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है. मैं स्वाति बड़ी प्लश ऑफिस में बैठ के एक्सिस बैंक की पॉलिसीज बना रहा हूं, लेकिन कस्टमर क्या फील कर रहा है ये तो मुझे पता ही नहीं है. क्यों पता नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर वो एरोगेंस है. हाउ डेयर यू. आप में सोच करके देखो ना, मिसबा की जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है. मे बी मोस्ट ऑफ यू. मुझे 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है. आई एम नॉट इवन वेरी श्योर कि आप सब 31 इयर्स से ज्यादा उम्र के हो. तो बहुत मुश्किल है मेरे जैसे आदमी के लिए सुनील कि मैं सुनील की बात सुनूं. और सुनना तो जरूरी है. अभी के एक्सरसाइज से यही समझ में आया, ये म्यूजियम की कहानी से तो यही समझ में आया कि आपको अपनी कंपनी के सबसे अनपढ़ आदमी से भी बात करनी पड़ेगी. सो इट विल नीड दैट ह्यूमिलिटी कि आप अपने से नीचे के लोगों की बात सुन सकें. बी, बिल्ड दैट डीएनए कि आपके नीचे के लोग आपसे बात कर सकें. आई हैव बीन अ वेरी रूड बॉस इन माई लाइफ. तो मुझे आपने स्वाति, इन अ टीम कॉन्वर्सेशन, इफ यू गेव मी एन अनइंटेलिजेंट आइडिया, मैं टीम में ही आपकी बेइज्जती कर दूंगा. उसका आउटकम क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने तुमसे आइडिया मांगा, वो देंगे नहीं आपको आइडिया कभी. वो क्या है, ये आदमी तो सिर्फ कपड़े फाड़ता है यार. तो कौन पागल से जबान लड़ाए? बाकी लोग भी फिर Right. नहीं हाँ, हैं। बिल्कुल. तो ये डीएनए भी बिल्ड करना होगा दैट ए, यू हैव टू लिसन, एंड बी, दैट द अदर पर्सन हैज टू स्टार्ट टॉकिंग टू यू. That DNA will make a lot of difference to organization. I help Asian Paints. Asian Paints का एक प्लांट मैं देखता हूँ. हमारे मेरे वाले प्लांट में, अंकलेश्वर का प्लांट में देखता हूँ. तो अंकलेश्वर वाले प्लांट में वी हैव इन द लास्ट, आई क्विट 2 years ago. उनका कंसल्टिंग मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ माई, आई वेंट थ्रू मेडिकल शिट. तो उस प्लांट में हमने 1360 काइजन किए थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स. वहाँ प्रोजेक्ट क्या होता है, वहाँ का सबसे छोटा स्टाफ अपने काम के एरिया में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा. तुम डिस्पैच देख रही थी ऋषु, और तुमने देखा कि जब डिलीवर करती हूँ ना तो 2-4 डब्बे लीक हो जाते हैं पेंट के. You identified this as a problem. Now we will do a Kaizen on improving that. We are not trying to change Asian Paints. We are saying, let us look at fixing smallish issues. Root cause ढूंढेंगे, root cause को fix करेंगे so that it does not come back to haunt us. मेरे प्लांट में 1360 होने के बाद भी हम एशियन पेंट्स के नंबर 1 प्लांट नहीं है. एशियन पेंट्स में बाकी प्लांट हमसे ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं. कल्चर देखो, वहाँ का प्लांट हेड मेरा जान ले लेता था, प्रणय सर मैंने रिसर्च किया ना तो मुझे दिख रहा है गूगल ना 5000 काइजन करता है, हम 5000 कैसे करेंगे? हमने बावले 1300 कर रहे हैं. 1360 एंगेजमेंट्स, और वहाँ लिटरली केयर टेकर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है. उनको अपने सबसे छोटे कर्मचारी को जाला लगाए ना, तो वो जाला में भी कहते हैं मुझे रूट कॉज ढूंढ करके बताओ. उनको आप जाला लगा था, आपने फोन किया अपने हेल्प डेस्क को, वो आया एडमिन वाला, सफाई करके चला गया. वो बोले नहीं नहीं, रेकरेंस कैसे रोकोगे ये बताओ. ये तो एक बार हो गया कि गंदगी थी, तुमने गंदगी साफ करवा दी. व्हाट प्रोसेसेस विल यू पुट इन प्लेस सच दैट द प्रॉब्लम डज नॉट कम बैक टू हॉन्ट अस. 6 सिग्मा का पूरा थॉट, इनफैक्ट वर्ल्ड के जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो ISO 9001 हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, CMMI हो, हर जगह एक चीज कॉमन है, विच इज अबाउट रूट कॉजेस.
अगर प्रॉब्लम फिक्स करना है तो इकलौता तरीका क्या है? रूट कॉज ढूंढना। और रूट कॉज कौन बताएगा? केयरटेकर ऑफ द म्यूजियम। पता करिए वहां एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कौन वो काम को हैंडल कर रहा है, उससे बात करना होगा। आसान नहीं है। आई वॉज सेइंग डीएनए वाला थिंग, कभी कभी वो पर्सनैलिटी की भी बात होती है। देर आर सम पीपल इन लाइफ हु आर इंट्रोवर्ट्स, सम पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट को तो बस उंगली कर दो, वो बोलना शुरू कर देगा। मुझसे आंसर निकलवाना बहुत आसान है, आप बस प्ले बटन दबाइए, फिर तो मैं एक आध घंटे आपको बता सकता हूँ। बट देर आर सम पीपल हु नो बट डोंट टॉक। आपको किसी न किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा टू बी एबल टू गेट आंसर्स फ्रॉम देम। So Six Sigma, which started as a problem-solving method, started to evolve and pass on very, very important management philosophies, if you were to call it. एक तो हम उस समय से डिस्कस कर रहे हैं employee engagement. Today, all organizations that I know, largish, smallish, ज़्यादातर organizations ने कोई ना कोई infrastructure build कर लिया है to be able to get ideas from their employees. EXL is an organization here in नोएडा। वो अपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए ओवरऑल लिंक्डइन EXL ही है पूरे में। लिंक्डइन तो पूरे में EXL ही है, उसी के ही जॉब पोस्ट है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए दे हैव अ स्ट्रक्चर दैट दे कॉल एज एम, ऑल आइडियाज मैटर। वो हर एम्प्लॉय को कुछ पैसा देते हैं फॉर यू टू बी एबल टू शेयर आइडियाज। आई कम फ्रॉम जी। हमारे ज़माने में हमारी फॉर्म में देयर वाज अ थीम कॉल्ड EOGO, ईच वन गिव वन। हर एम्प्लॉय को हर वीक एक आइडिया मैंडेटरी है। नहीं दोगे तो अप्रेजल बंद हो जाएगा तुम्हारा। 52 आइडियाज। किसी कंपनी में सर स्प्रिंट पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं ना, कुछ कैंपेन चलाते हैं 3 मंथ्स 2 मंथ्स, तो उसमें कुछ चीज़ें उनको प्रमोट करते हैं। वॉट हम लोगों को कैसे बांधा था एम्प्लॉय के लिए 52 आइडियाज, आपके लिए जितना आपका टीम, यू आर मैनेजर क्वालिटी, यू हैव 10 पीपल, तो मतलब 520 आइडिया होने चाहिए तेरे अप्रेजल के लिए। तू अपना आइडिया तो दे ही, इंश्योर कर दैट योर टीम इज गिविंग, नहीं तो तेरा अप्रेजल रुक जाएगा। नहीं कि क्यों आएगा आइडिया? कोई आपको हम जहाज बनाने थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। आप AIG को ये बता दें कि सर वर्ड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना बंद करके ऐसे करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन आइडिया। But it is not mandatory ना that idea should be cost effective, मतलब sorry I chose wrong word, मतलब cost effective नहीं, उससे it has something to do with money। नहीं कोई जरूरी नहीं। तुमको ऐसा दिख रहा है कि तुम AIG के एम्प्लॉय हो, तुमको ऐसा दिख रहा है सर बहुत शैबी लग रहा है, डज इट हैव टू डू एनीथिंग विद मनी? नो, यू आर सेइंग प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट सर। फ्लावर्स नहीं है सर, प्लेजेंट नहीं है, आइडिया है। यू हैव टू टेल मी हाउ विल दैट इम्पैक्ट मी। बोले सर हैप्पियर एम्प्लॉयज will be more productive. Fantastic, idea taken. G Medical Sciences does a scheme called Power of One, the power of one idea. आज भी $1 million मिलता है। जो बेस्ट आइडिया ऑफ द ईयर होगा उसको 1 million मिलता है। In our office campus there is 2 tasks dedicated for GE, so we are so fascinated by their building, और ये लगता है कि भाई इधर मेरे को मन करता है उनके गेट के पीछे अपना रिज्यूमे डाल दूं। जी बहुत अच्छी देखा नहीं कहाँ पे। दैट्स एन क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन यार, नॉर्मल नहीं है। और सिर्फ कल्चर का बात है। They have very good interface, like उनका अंदर बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बाहर से तो ये दिखता है। There is a firm here in Gurgaon called Cvent Technologies. तो सीवेंट में मैं यही पोर्शन, जब जो पोर्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यही पोर्शन में उनको भी ट्रेन कर रहा था। तो उसके CEO ने बोला प्रणय आई हैव समथिंग टू शेयर। मैंने बोल, सीवेंट टेक्नोलॉजीज में 30% वेटेज ऑफ योर अप्रेजल इज ओनली ऑन आइडिया शेयरिंग।
concluded, sir. Performance आप सोच के review देखिए। हो गया। सोच के देखिए कैसा पुश कर दिया आपको। But I think sir these ideas must have मतलब ऐसा कुछ होता होगा ना, मैंने भी कि उनको cost- बोला, ये cost effective होना मैंने भी वही बोला कि निशांत एक तू ये गलत कर रहा है कि अगर ध्यान नहीं रखेगा तो कचरा आने लगेगा। फिर मैं तो आइडिया देने लगूँ कि मेरी कैफेटेरिया में प्याज होना चाहिए, वो भी तो आइडिया है। ज्योति स्टार्ट्स टू से दैट मेरा रूम प्लेजेंट रखने के लिए ग्रीन कलर से पेंट करवा, तो दैट्स आल्सो एन आइडिया। ही सेड आई एम ओके प्रणय, पहले 2 साल बहुत कचरा आएगा, बट धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट गेटिंग मैच्योर एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट पुशिंग देम। पहले इम्प्रूवमेंट आइडिया, फिर इम्प्लीमेंटेबल इम्प्रूवमेंट आइडिया, फिर इम्प्लीमेंटेड आइडिया, बट दिस विल टेक सम मैच्योरिटी and I'm willing to spend time with that rubbish idea also, because एक बार मनीष नेगी सोचने लगेगा, एक बार चिराग कपूर सोचने लगेगा, अभी तो मुझे उस डंजन से बाहर निकालना है, that people are not participating। जैसे वो डंजन से बाहर निकलेंगे उनका दिमाग चलने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी सी बात। नेहा, तेरी टीम में अज्यूम करो कि तेरे पास 10 लोग हैं, if all 10 start to think, you are 11 people now। होगा, शुरू में बहुत कचरा आएगा, शुरू में बहुत कचरा आएगा, and trust you me, you can never be intelligent enough। जिस दिन आप ये मान लें कि आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। I am training someone who is a Tableau desktop expert। I know Six Sigma more than her, but she also knows, she also can add value to me। हाँ, जिस दिन आप अपने आप को श्रेष्ठतम मानना बंद कर देंगे तो लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा। You will start to do better in life the moment you realize that listening is a huge art। Everyone with me on this thought? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes। और मेरा ये प्रोफेशनल एडवाइस सब लोग लिख लो। लाइफ में अगर ग्रो करना है सुनील, चिराग, सुनना शुरू करो। धीरे धीरे करके कान पे फिल्टर लग जाएगा चिराग अपने आप, कि कचरा अंदर जाएगा ही नहीं। यू विल स्टार्ट टू कलेक्ट इंटेलिजेंट थॉट्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू। इट ओनली विल मेक यू स्मार्टर। इंस्टाग्राम पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो स्टार्ट लिस्टिंग टू थिंग्स दैट मैटर। उस 100 कचरा रील में से मे बी 10 could actually make a lot of difference to your life। I was randomly looking at LinkedIn a lot of years ago, 4-5 साल पहले की बात है। उसमें एक पोस्ट जैसे सिर्फ मेरे ही लिए लिखा था। कॉग्निजेंट के सीईओ ने, डिसूजा ने एक पोस्ट डाला था दैट ही इज अ मेनियक अबाउट परफेक्शन। उसने बोला परफेक्शन मत ढूंढो, 90% पे भी अग्री कर जाओ। मैं ऑब्सेस्ड होता था। मेरा वेबसाइट जब तक 100% नहीं होगा ना, तब तक नहीं रिलीज करूंगा। उसके चक्कर में 8 महीने लग गए। Are you with me? D'Souza said nothing doing। 95% हो गया ना, बढ़ जा। वो आर्टिकल सिर्फ मेरे लिए लिखा था, वो डिसूजा के बारे में नहीं था यार, वो मेरे बारे में था। जैसे मेरे लाइफ में मैं जो अंधेरे में घूम रहा था, वो एक आदमी मुझे लालटेन लेके, टॉर्च लेके दिखा रहा था रास्ता। दिस इज हाउ यू शुड डू इट प्रणय। पॉसिबली लिसनिंग विल डू दैट टू यू। यू नेवर नो कौन सा एडवाइस कब तुम्हारी लाइफ पे सूट कर जाए, तुम्हारे बिजनेस में सूट कर जाए। Listening is very important. Another very, very important success factor, that a very important element that Six Sigma started to talk to the world about was about customer focus. We are living in a very strange time. We are living in a time where you suddenly have a mobility company, a taxi company that does not have a single taxi, but it is worth maybe $300-400 billion today. Uber. Exactly। सोच के देखो, टैक्सी बिजनेस तो हमेशा से एग्जिस्ट करता था नो। पहले भी घुड़सवार होते थे, बगियां होती थी शायद इंडिया में, जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था। टैक्सीज तो पहले भी थी। व्हाट मेड उबर सक्सेसफुल? 2007 में भी तो हो जाते थे। तो क्या what happened? Swati, why do you think Uber has been so successful and others have not been that successful? टैक्सीज तो पहले भी थी, क्या कारण?
नेहा, why did Uber win? Uber possibly, मुझे ऐसा लगता है कि someone who was a taxi user had started to say, someone like me, जब तक मेरी my sister was traveling from my home to airport, जब तक वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं पहुंच जाती थी तब तक मैं फोन पे लगा रहता था. वो बोल रही है भैया मैं आई एम ग्रोन अप, स्टॉप फॉलोइंग मी. आई हैड सेफ्टी इश्यूज, मुझे बहुत डर लगता था. किसी प्रणय की बात कोई ऊबर सुन रहा था, they started to say, don't worry Pranay, we will give you tracking of where the car is right now. Someone else was cribbing that ये जो लोकल टैक्सी वाले हैं उनका प्राइसिंग बहुत रैंडम है, उनका मूड कर गया तो फरीदाबाद से नोएडा आने का 800, नहीं मूड किया तो 200, कुछ भी हो सकता है. You felt exploited, you felt that the pricing was not predictable. Uber said, बुक करने समय भी मैं तुझे बता दूंगा कि 213 रुपया 70 पैसा लगेगा. Organizations that are able to solve customer problems will win. It is only about that very simple story. Restaurant business तो पहले से था. Why is Zomato making so much money? Zomato is making so much money because some Swati had some guest coming over and she was wondering कितना अच्छा होता अगर उस दुकान से ना बिरयानी आ जाती. That shopkeeper refused कि पागल है क्या, मैं तेरे घर डिलीवर करूंगा, आके पिकअप करना है तो कर ले. You were not listening, that shopkeeper wasn't listening. Someone set up a new technology infrastructure कि आप on the press of your finger you are able to get whatever you want at your doorsteps. That problem that was imminent created a big brand like Zomato. I don't know you know this or not. They are now saying 62% of entire Europe's restaurant is being run by Zomato. Zomato यूरोप में जिसको चाहता है उसका बिजनेस चलता है, जिसको चाहता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है. They are that big in Europe now. सोच के देखिए. Six Sigma started to tell you very very clearly that quality का मतलब is not about adhering to standards. नेहा, ज्योति, what do you mean when you say quality का मतलब क्या? When you say something is a good product, something is pass का मतलब, quality का मतलब basically whatever the standards we have defined for the product or anything, so whatever the like output is there, whether it is meeting those standards or not. Fair thought. Chirag, how about you? Swati, how about you? क्या है Quality means delivering the product or service meet the customer expectation. हाँ, fair thought. Misbah, quality can be a customer satisfaction kind of. Absolutely. So anything that meets or exceeds customer expectation is quality, which also tells us that all of us are different people. I'm a Bihari. मेरी सुबह की पहली चाय तेज शक्कर होती है. हो सकता है तुझे ब्लैक कॉफी पसंद आती हो. तो एक ही प्रोडक्ट जो प्रणय को बहुत अच्छी लग रही है वो हो सकता है तुम्हारे अनुसार डिफेक्ट हो. करेक्ट ना? सेम प्रोडक्ट, one for one customer it is great product, another customer it is a bad product. Again फिर तो वही सवाल हो गया, फिर तो वही कहानी हो गई. So how do I ensure that I give the customer what he wants? It is about asking the customer. जब तक मैं स्वाति से पूछूंगा नहीं कि तुझे कॉफी कैसी अच्छी लगती है, तब तक तो मैं उसके पसंद की कॉफी दे ही नहीं पाऊंगा. I am currently hired by a news agency. They are amongst the top 5 in this country. The owner is saying that अगर TRP नहीं ठीक हुआ तो दुकान बंद हो जाएगी. They will shut down. They have in fact laid off about 18-19% of their staff already. इंडिया का टॉप 5 है. परवेश, उनका न्यूज चैनल चल क्यों नहीं रहा है? एक ही कारण है, स्वाति को जो चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो.
look at all of us today on the group. We are all very different people. I am nearing about 48, 49, 50. मेरा टेस्ट और तेरा टेस्ट जरूरी है सेम हो. You maybe want to hear some fashion news. I am more looking at how India is growing. He is possibly looking at something about his own native place. He is looking at something else. So the only way, so the owner asked me, प्रणय जी क्या करना है? बहुत सिंपल आंसर है सर. तुम डिसाइड करना बंद कर दो. कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर. So as a news network, हमारा पहला काम होना चाहिए, let us reach out to the genre of the customer that we want to reach to. हम डिसाइड कर लें कि हम ये न्यूज़ किसके लिए बनाएंगे. Women in the age of 20 to 25. Okay. तो 20 से 25 वाली लड़कियों को रीच आउट करो, उनसे पूछो तुम क्या देखना चाहते हो. जो 20 से 25 वालों वाला प्रोडक्ट था, अगर वो प्रणय को बेचोगे तो हो सकता है वो ना चले. करेक्ट ना? स्टार टीवी व्हेन दे केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोग्राम क्या थे उनके पास? सेंटा बारबरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बे वॉच. आई एम नॉट सेइंग दैट दे वर बैड प्रोग्राम्स, लेकिन नंबर 1 किसने बनाया सुनील उनको इंडिया में? सास भी कभी बहू थी. सास भी कभी, राइट, स्मृति ईरानी. सोच के देखा, आया था क्या लेकर के? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बे वॉच, सेंटा बारबरा. लेकिन जब उनको समझ में आया कि मुझे इंडिया में नंबर 1 होना है, तो उन्होंने स्टडी करके देखा कि टीवी देखता कौन है. तो टीवी देखने के लिए मुझे हाउसवाइफ्स ही है मेरी टारगेट. अच्छा, हाउसवाइफ्स देखते हैं. किस टाइम पे देखती हैं? बोले खाना वाना बना के सबको खाना खिला के 9 बजे फ्री हो जाती हैं. अच्छा, 9 बजे है मेरा प्राइम स्लॉट. क्या दूं उनको? बोले उनके जैसी कहानी. They did not want to see Amitabh Bachchan. They did not want to see a Shah Rukh Khan. They wanted to see themselves. A story about a bahu that is struggling. आउटकम क्या हुआ? वो सास भी कभी बहू थी ने उनको इंडियन नंबर बना दिया. एंड सो मच सो दैट स्मृति ईरानी को मिनिस्टर बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर. मैं स्मृति की बहुत टांग खींचता था. मैं स्मृति की बहुत टांग खींचता था कि तेरा तो किस्मत बदल दिया. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम इन अ क्लास. आप ये सोच के देखो. तो अगर आप स्टार नेटवर्क हो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्क्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. आप जो खाना परोस रहे थे यूरोप में, वो खाना इंडिया में नहीं चलेगा. इंडिया तो छोड़ दो, जो दिल्ली में चलेगा वो हो सकता है बिहार में ना चले. यू कांट बेट योर नेक दैट बिकॉज स्वाति को पसंद आया था इसलिए प्रणय को पसंद आएगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आपको रिसर्च करके देखना पड़ेगा कि सिनेमा हॉल जाता कौन है. अच्छा, जो सिनेमा हॉल जा रहा है उसको क्या चाहिए. और सरप्राइजिंगली कितना मुझे ये बात सोच करके भी हंसी आती है. ऑल दी पीपल हु बिकम शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड, दे बिकेम शाहरुख खान बिकॉज दे लुक लाइक अ नेबर नियर बाय. दीपिका पादुकोण लुक लाइक द गर्ल इन योर पड़ोस. लेकिन जैसे ही हो गई वो सक्सेसफुल, फिर वो स्टार हो गई. शी स्टार्टेड टू ड्रेस द वे ओनली divas ड्रेस. तो जैसे ही ऋषु को वो मुझसे डिफरेंट दिखने लगी ना, यू स्टॉप लुकिंग एट हर. इफ शी स्टार्टेड टू लुक लाइक यू, इफ शी ड्रेस्ड लाइक यू. इसीलिए तुम साउथ इंडियंस का देख लो, उनके रजनीकांत आज भी टकले हैं. इसीलिए तो भगवान है, बिकॉज वो तुम्हारे फादर जैसे दिखते हैं तुमको. मेरा चाचा एक्चुअली लुंगी पहनता है. तो when I see a star in lungi and that bulging पेट, मुझे लगता है चाचा ही है. उनके चाचा, हमारी हिंदी मूवीज के चाचा तो 70 लाख की सूट में होते हैं. मैं तो रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ तेरे से कहानी. Are you guys with me when I'm telling you this? Businesses will have to realize हम सक्सेसफुल तभी होंगे जब हम कस्टमर की बात सुनेंगे. फिर वही बात आ गई, फिर लिसनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. पिछली बार कह रहे थे एम्प्लॉयज की सुनो, इस बार हम कह रहे हैं कस्टमर की सुनो.
And greatest of products will win or lose because you weren't listening to the customer. Zomato के पास एक डेडिकेटेड टीम है, तुम अभी डाल के देखो ना एक फीडबैक, एक प्रॉब्लम, उनके पास एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी टीम है जो तुरंत रिसर्च करने लगती है कि क्या करें, ये वाला इशू हुआ था सुनील को, दे आर फिक्सिंग योर प्रॉब्लम्स. लुक एट देयर एड्स यार, इतना इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. 4 बजे सडनली मेरे फोन पे आएगा, चाय पिया क्या? So relatable. मतलब उनकी मार्केटिंग टीम को तो hats off. I don't know how come they relate to people's mind. because they are thinking about themselves. वो तुम्हारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, वो मेरे और तुम्हारे वो कोई हाई एंड शाहरुख खान को लगा के ऐड कराने वाली टीम नहीं है. उनको ये समझ में आ रहा है कि मुझे सुनील को चाय पिलानी है तो सुनील जैसा सोचना पड़ेगा. राइट सर. मुझे अभी सुनील एक इनविटेशन आया है, मुझे एक जोमेटो से, माय वाइफ इज अ हेवी स्पेंडर एट जोमेटो, उनको समझ में आ गया कि मैं बिहारी हूँ, तो मुझे वो जो 3 मिनट का वीडियो आया है ना, कोई प्रीमियम मेंबरशिप के लिए 3 मिनट का वीडियो, वो भोजपुरी में है. ब्लडी हेल. मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं प्रीमियम ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ कि उसने मुझे भोजपुरी में मैसेज किया है. उसका वो अंदर का बहुत बिहारी होना उन्होंने टच कर दिया. अरे कितनी खतरनाक साइकोलॉजी है चिराग. थोड़ा तो झुकाव हो जाता है, पूरी ट्रैक आप उस तरह के हो और आपका टच वो किसी ने टच कर दिया. तुम आज भी किसी बिहारी, अगर तुमको पहचानना है कि कोई बिहारी है कि नहीं, उसके सामने छठ का गाना लगा के देख लो. इफ ही फील्स नॉस्टैल्जिक, इसका मतलब वो बिहारी है. हम लोग अंग्रेज हैं यार. We've never stayed in Bihar. I am not connected to Bihar in any way. I don't go back. But तुम छठ का गाना लगा के देख लो, सब कुछ छूट जाता है. So everything is at a standstill. And this is about all of us. जो भी हमारा native place है. I was listening to Kohli the other day. जितने मौत से वो कहानी सुना रहा था ना, किसी पर्टिकुलर जगह के, यहाँ के गोलगप्पे खा लेना, वहाँ का दही बल्ला खा लेना, यहाँ का ये चीज, और वो दिखाता था कि तुमको इश्क है उस बात से. उसका दिल्ली वाला बाहर नहीं निकाल सकते ना यार. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. If you want to be successful, this is very very crucial. Six Sigma started to tell you this very simple but very important fact. Customer focus is super crucial if you want to win. कस्टमर फोकस मतलब टॉक टू द कस्टमर, फाइंड आउट, आस्क. मुझे सिक्स सिग्मा करते करते 25 साल हो गया. व्हाट इज दिस ट्रेनिंग अबाउट यू, अबाउट मी? नो, इट इज अबाउट यू. तुमको समझ में आना चाहिए. When will the training program be considered successful? When you understand, when you are able to do the projects. I have done hundreds of projects already in my life. If अगर मैं फैल जाऊं कि अच्छा तुझे नहीं आता तू जान, मुझे तो आता है ना. That is now not how success has to be measured. Success has to be measured basis what value did the customer get. If you are able to do that as a business, as an organization, you will be successful. Everyone with me so far? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 10 मिनट का ब्रेक. स्वाति, सुनील, मनीष, चिराग, we back? Yeah. Yes, I'm back. Yeah. मनीष, तुषार, Yes, sir. Here. नेहा. Yes, I'm here. So while prior to getting into the break, we started to discuss that Six Sigma started as a problem-solving method, yeah, where our necessary focus was around y is a function of x. We started to say that if you want to solve problems, the only sustainable way of problem solving is around the thought of y is a function of x, where we are saying सुपरफिशियली प्रॉब्लम को अटेंड करने की बजाय रूट कॉजेज ढूंढो, रूट कॉजेज को अटेंड करो. देन वी वेंट ऑन टू से दैट Six Sigma started to pass on some very important management lessons to us. One lesson was about employee engagement.
Another lesson was around customer focus. Everyone together with me on the discussion that we have had so far. Yes. The last Yes, sir. is distaste to defect and variation. आपको organizational systems ऐसे build करने पड़ेंगे, आपको अपने around business processes ऐसे build करने पड़ेंगे that you do not allow things to go wrong around you. You will have to build structures. Lean में हम एक term इस्तेमाल करते हैं, we call it mistake proofing. गलती होने का लाइकलीहुड ही खत्म कर दो, नहीं तो अगर आप कंट्रोल करने के मोड में आओगे. India had a huge problem that our toll booths had become a huge area of corruption. 50,000 गाड़ियां पास हो रही हैं तो टोल बूथ को यूज करके पेपर पे वो 500 दिखाई गई, बाकी सारा पैसा करप्शन मनी इधर का उधर हो गया. नाउ सडनली यू हैव अ फास्ट टैग सोल्यूशन. फास्ट टैगिंग ने क्या कर दिया, इंसान की मशरूफियत जो बीच में थी, जहां वो जुगाड़ कर सकता था, वो जुगाड़ का स्कोप ही खत्म कर दिया. वो जुगाड़ ही खत्म कर दिया. आपको सिस्टम्स सोचने होंगे, ऐसे सिस्टम्स बनाने का वेयर यू आर मिस्टेक प्रूफिंग एवरीथिंग अराउंड यू. गलती होने का चांस ही खत्म करो. नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मिस्टेक सिग्नलिंग बिल्ड करो, या बेस्ट अगर आप कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल. एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. अभी 2-3 दिन में पहले मेरे साथ एक बहुत फनी प्रॉब्लम हुआ है. जब हम आपको ई लर्निंग एलोकेट करते हैं तो एक ऐसा प्रोग्राम सिस्टम में पड़ा हुआ है कि आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको एलोकेट करना होता है. अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे सिस्टम में 2 प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं. Let me show you my problem. तो अभी किसी स्टूडेंट को अगर मुझे प्रोग्राम एलोकेट करना है, माय टीम विल, उसको डिजिटल प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्रोग्राम दिख रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसेंशियल्स, दूसरा दिख रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. पहला यही आया था, उसको प्रणय से इंस्ट्रक्शन क्या आया कि रेशो को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम दे दो. उन लोगों ने इसेंशियल एलोकेट कर दिया. इसेंशियल एक्चुअली रॉन्ग प्रोग्राम है. उसको कैसे पता होगा ये बात? एक्चुअली इसमें सारे वीडियोस जो हैं वो अच्छे वाले नहीं हैं, तो गलती होने का चांस तुमने छोड़ दिया ना. तो अभी मुझे 3-4 स्टूडेंट ने बोला कि सर आपने जो बोला था वो तो है नहीं उसमें, क्या करूं? डीएक्टिवेट कर दो इस प्रोग्राम को. गलती होने का चांस छोड़ोगे तो लोग गलतियां करेंगे, करेक्ट ना? सो व्हाई नॉट डीएक्टिवेट दिस प्रोग्राम सो दैट गलती होने का चांस ही खत्म हो जाए. एवरीवन विथ मी? Yes. बहुत फनी स्टोरी है. एसर एज अ लैपटॉप कंपनी, उन्होंने अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया. दे फाउंड दैट 62% ऑफ देयर कस्टमर्स वर अनॉयड. कस्टमर कह रहा था कि यार लैपटॉप के साथ वो एक सीडी देने वाले थे, स्टार्टअप सीडी, वो सीडी हमको मिला ही नहीं. बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ. नॉट हैप्पी विथ एसर. एसर कह रहा है मैंने तो डीलर को दिया था, डीलर भूल गया. लेकिन नाराजगी किससे हुई? एसर से, कंपनी से. तुम एक्सिस बैंक हो, तुमने आउटसोर्स कर दिया अपना प्रिंटिंग का काम परवेज प्रिंट्स को, लेकिन प्रोडक्ट तो खरीदा था सुनील ने ना. तो उसकी नाराजगी तो एक्सिस बैंक से है. उसको क्या मालूम कि किसने प्रिंट किया था? अगर प्रिंटिंग की क्वालिटी खराब है, प्रिंटिंग में 2-4 पेज मिस हो गया, तो किसको गाली देगा? वो एक्सिस बैंक को गाली देगा. करेक्ट ना एवरीवन? Right, sir. सन लाइफ के फाइनेंस टीम ने कुछ मिस्टेक कर दिया, तुम्हारी सैलरी में कुछ उलट फेर हो गया, या क्लैरिटी नहीं है तुमको अपनी सैलरी में. एम्प्लॉय ये थोड़ी ना बोल रहा है कि फाइनेंस वाले ने गलती कर दी है.
whereas Sun Life is not a good firm to work with. क्या करें ऐसा जिससे गलती होने का चांस खत्म हो जाए? एसर अंडरस्टूड दैट वो जो स्टार्टअप सीधी था वो ही प्रॉब्लम की जड़ था. दे लुक्ड एट योर हार्ड डिस्क में उन्होंने एक ड्राइव का छोटा सा पोर्शन एलोकेट करके स्टार्टर का जो कंटेंट था वो तुम्हारे हार्ड ड्राइव में डाल दिया. अब न सीडी देना है न भूलने का जुगाड़ है. आर यू गाइस विथ मी? Yes. There is a very funny story. There is a call center called Exam. ये ना यूके के एग्जाम्स बुक करते हैं. So if you want to take up any exam in the UK, you will call up their call center, give your name, give your details, शहर बताओ, काउंटी बताओ, वो सारा डिटेल बताओ, ये एग्जाम बुक करेंगे. इनका जब क्वालिटी ऑडिट हुआ तो इनका क्वालिटी ऑडिट में आया दैट दे आर मेकिंग 23% ऑफ द एग्जाम्स वर रॉन्गली बुक्ड. आई डोंट नो आप लोगों को यूके प्रोसेसेस का आइडिया है कि नहीं? नहीं, नो. इनके ना शहरों के नाम बहुत अजीब होते हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब होता है. मतलब आई हैव सर्व्ड यूके प्रोसेसेस फॉर अबाउट 2 years. गॉड ब्लेस अस. अच्छा, यूके में अलग अलग इलाकों में लोग अंग्रेजी अलग अलग तरीके से बोलते हैं. उनके स्लैंग्स बहुत डिफरेंट हैं. पर आपने पैसे बचाने के चक्कर में इस कॉल सेंटर में एजेंट तो हायर किया वही 12,000-14,000 वाला. किसी छोटे शहर से प्रणय को उठाया, अपना कॉल सेंटर का एजेंट बना दिया. और उस प्रणय को नॉटिंगमशायर का स्पेलिंग लिखना था. एक तो उन अंग्रेजों की बात, आई डोंट नो, अजीब है उनका एक्सेंट. जो स्कॉटलैंड, वो जेफरी बॉयकॉट के जितने रिश्तेदार हैं, ओ गॉड, अगर उनकी अंग्रेजी आप समझ लोगे तो मुझे आज तक, मतलब मुझे इतना ट्रॉमा है उस बात का कि दिस हैज बीन 15 years नाउ सिंस आई हैव लेफ्ट दैट बिजनेस. आज भी मैं मंडे नहीं बोल सकता, मुझसे मुंडे ही निकलता है. पंजाबी में से मुंडे कुछ और होता है. इट वॉज नेवर ट्यूसडे, इट वॉज ट्यूसडे. वो स्कॉटिश, उन लोगों से बात कर करके आदत हो गई. आपने किसी प्रणय को हायर किया, स्मॉल टाउन बॉय. आई कॉल्ड अप, मेरे साथ हुआ, आई कॉल्ड अप अ कस्टमर, मिस्टर पैटरसन. So a lady picked up my phone. May I please speak with Mr. Patterson? She says he's behind the church. Behind the church का मतलब मर जाना. मैं तो बिहारी हूँ, मैंने तो सिगरेट पीना ही मंदिर के पीछे सीखा है. मैंने भी यही समझा. तो मैंने पूछ दिया उस लेडी से, so how do I reach out to Mr. Patterson? And British are very sarcastic. तो उसने मुझसे पूछा, उस औरत ने मुझे बोला कि प्रणय, son, do you see any window outside? Yes. Look outside, do you see any lorries? मतलब ट्रक कोई दिख रहा है? I said yes. बोले ट्रक के आगे आ जा, मिस्टर पैटरसन से मिल लेंगे. अच्छा, मुझे ये जोक भी, मतलब उसने मेरी बेइज्जती करी है, ये भी समझने में मुझे 2-4-5 मिनट लगा. मेरी ट्रेनर बगल से गुजर रही थी, उसने बोला कमीने तेरी बेइज्जती कर दी उसने. आप सोचो कि एक आदमी को, जिसको यूके का कल्चर नहीं मालूम है, यूके के अजीब एक्सेंट नहीं समझ में आते हैं, अजीब अजीब शहरों के नाम नहीं समझ में आते हैं, उनसे आप पूरा डिटेल लिखवा रहे हो. मिस्टेक तो होना ही होना है. उसी समय उस कॉल सेंटर का एक सीनियर मैनेजर क्वालिटी वाज ट्रैवलिंग टू द यूके एंड ही फाउंड अ वेरी फनी थिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग विथ यूके. वहाँ दे यूज, जैसे हम पिन कोड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है समथिंग दैट दे कॉल एज पोस्ट कोड. पोस्ट कोड किसी बिल्डिंग का एड्रेस होता है. सो पोस्ट कोड विल बी समथिंग लाइक UR12 HG. एक्चुअली ये लास्ट पार्ट किसी बिल्डिंग का एड्रेस है. तो अब वो पूरा डिटेल लेने के बजाय एग्जाम ने शुरू किया कि जैसे ही कोई फ़ोन करता था, आई वुड वांट टू टेक अप दिस एग्जाम, कुड यू टेल मी द पोस्ट कोड. अब हम शहर, काउंटी, रोड नंबर, बिल्डिंग नंबर नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं, पोस्ट कोड बताओ. और हमने फोनेटिकली उसको U एज इन यूरेनियम, R एज इन, तो फोनेटिकली भी उसको कंफर्म कर लिया. अब माई लाइकलीहुड ऑफ मेकिंग अ एरर हैज रिड्यूस्ड. एवरीवन, आर यू गाइस विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. एक चेंज से you are reducing the likelihood of us making mistake. Still, it is still not mistake proofed,
लेकिन फिर भी मिस्टेक होने का लाइक्लीहुड तो घट गया। नहीं करोगे तो भसड़ में पड़ जाओगे। IFB ने अपना पहला फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन बनाया। सो अज्यूम करिए कि ये वो सेलिब्रेटरी पार्टी है जहां ये वॉशिंग मशीन कल लॉन्च करने वाले हैं अपन। ये सेलिब्रेटरी मीटिंग है। उस मीटिंग में एक हिंदुस्तानी बैठा था, उसने बोला सर आई हैव अ क्वेश्चन, फ्रंट लोडिंग है, व्हाट इफ द हाउस हैज अ स्मॉल किड और वो बच्चा वॉशिंग मशीन के अंदर बंद हो जाए तो मर जाएगा। डिजाइन नेट ने बोला ओके डोंट वरी, मैं ऐसा जुगाड़ कर दूंगा कि बाहर से IFB का वॉशिंग मशीन सिर्फ बाहर से बंद होगा, अंदर से कोई नहीं बंद कर सकता है। He said, sir, I have another question. What if there are 2 children in the house? एक अंदर बैठ जाए, दूसरा बाहर से बंद कर दे, मर जाएगा। और प्राइमरी बायर कौन है वॉशिंग मशीन का? माँ, घर की औरत। And if she understands that this is a threat to my child, she will never buy. So IFB decided, IFB का फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन ना अंदर से बंद होगा ना बाहर से बंद होगा। ऊपर एक बटन बनाया, ऊपर के उस बटन से, और उसका हाइट उन्होंने स्टडी करके ऐसा डाला कि उस एज के बच्चे उस तक पहुंच ही नहीं सके। दैट वाज देयर मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरिंग मिस्टेक प्रूफिंग। और एक रियलिटी है, मिस्टेक्स तो हर जगह लाइकली हैं। मैं जब ऑफिस आता हूं तो आई नीड टू कैरी अबाउट 15-16 थिंग्स टू ऑफिस। व्हाट इफ यू फॉरगेट आई एम ट्रैवलिंग टुमारो? व्हाट इफ यू फॉरगेट योर एयर टिकट? वहां पे आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड भूल गई तो पॉसिबल है ना? हाउ डू यू इंश्योर कि आप नहीं भूलो? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए जुगाड़ निकाल दिया, DG यात्रा। हाँ, हम लोगों के लिए तो DG यात्रा है, अब तो कुछ नहीं लेके जाना है, आपका शक्ल पहचानता है, कोई डॉक्यूमेंट कहीं नहीं लगता है मुझे। मिस्टेक प्रूफिंग है। यू विल हैव टू थिंक ऑफ वेज टू मेक मिस्टेक्स डिफिकल्ट अराउंड यू, और जितना आप इसको प्लेजेंट बनाएंगे। गाड़ी में आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो गाड़ी शोर करने लगती है, मिस्टेक सिग्नलिंग है। बट आई स्टिल वुड वांट मोर इंटेलिजेंट। आई डोंट नो चिराग तेरे लिए कितना कंफर्टेबल है, मेरे लिए वो जो गाड़ी अजीब सी आवाज करने लगता है ना, आई गेट डैजल्ड। मुझे नहीं समझता क्या हुआ, क्यों बजने लगा। चिराग, आज इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बोलना इज नॉट अ डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। व्हाट इफ योर कार स्टार्टेड टू टॉक टू यू टू से दैट सुनील वेयर योर सीट बेल्ट? इज इट नॉट ईजियर फॉर मी? मेरे लिए तो है। वो अजीब लाइट जल जाता है, ब्रेक ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है। आप लोगों को शायद समझ में आता होगा, मुझे तो नहीं समझ में आता यार। मुझे तो बस ये समझ में आता है कि गाड़ी में बहुत सारे लाल लत्ती जल गई। कैन यू नॉट डेवलप अ मोर इंटेलिजेंट सोल्यूशन दैट कैन टॉक टू यू? मारुति सुजुकी नाउ हैज अ मोबाइल ऐप। हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी कम होगा तो भी बताता है तुमको। इट सेंड्स यू अ मैसेज, यू आर रनिंग लो ऑन फ्यूल। गाड़ी में हवा कम है। ब्रिलियंट। आई डोंट नो आप लोगों को होता है कि मुझे इन चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। हाँ, हम बोले वो क्यों बताएं, तूने गाड़ी खरीदी थी, तुझे दे दिया। But what if you gave your car to your brother कि आज ठीक है तुम्हें लेके जाने? तो वो ऐप उसको आपको देना पड़ेगा, वो ऐप पे वो भी लॉगिन कर ले। एंड सोचना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग द सेम वे दैट यू आर थिंकिंग कि यूजर तक तो ठीक था, यूजर के भाई को दे दिया तो क्या होगा? नो, वी विल हैव टू डेवलप सम सॉल्यूशन। यू विल हैव टू मेक मिस्टेक्स डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तभी बिजनेस चलेगा, तभी कंट्री चलेगी, तभी सोसाइटीज रन करेंगी। फर्टिलाइजर इंडिया में बहुत चोरी होता था। आउटकम, गवर्नमेंट ने एक नया सोल्यूशन निकाला, फर्टिलाइजर की नीम कोटिंग कर दी गई। फर्टिलाइजर विच वाज स्टोलन बाय केमिकल कंपनीज, उनके लिए वो प्रोडक्ट इनपुट था, नीम कोटिंग हो जाने के बाद उनके लिए यूजलेस हो गया। आउटकम, चोरी खत्म हो गई। 83% of all chori that happened for fertilizers was only because it was an input to the chemical industry. 83% चोरी बंद। आप सोच रहे हैं मैं पुलिसिंग करूंगा, मैं चोरी करने वाले को जेल भेज दूंगा, ठीक है वो तब करते रहना, बट व्हाई कांट यू मेक प्रोविजन सच दैट चोरी करना ही डिफिकल्ट हो जाए। मेरे टाइम में मुझे ध्यान है, पेट्रोल में केरोसिन मिला देते थे पेट्रोल पंप वाले, तो एडल्ट्रेटेड पेट्रोल वाज अ
was a very likely thing for all of us in our age, in our youth. Very, very likely. गवर्नमेंट ने एक छोटा सा केमिकल ऐड किया है केरोसिन ऑयल में. द मोमेंट यू ऐड इट विद पेट्रोल, गाड़ी सीज हो जाएगी. पेट्रोल पंप वालों को समझ में आ गया कि इससे चोरी करना पॉसिबल नहीं है. सोचो ना, तुम्हारी गाड़ी को भी तुमने पेट्रोल डलवाया, तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाती, तुम तो बैंड बजा दोगे पेट्रोल पंप वालों को. करेक्ट ना? You have to work at building solutions that make mistakes impossible. स्वाति, क्या करोगे? कैसे इंश्योर करोगे कि तुमको ऑफिस 10 चीजें लेके जानी है और वो 10 के 10 तुम हर दिन ले जा पाओ? हाउ डू यू इंश्योर? योर आईडी कार्ड इज योर एक्सेस कार्ड ऑल्सो. बैंक पे तुम घुसोगे, टेलर इलाके में घुसोगे, कार्ड लगेगा, उधर जाओगे, कार्ड लगेगा. व्हाट इफ यू फॉरगेट टू कैरी दैट कार्ड? क्या करें? आंसर क्या है इसका? मे बी फेशियल रिकॉग्निशन. मुझे जरूरत ही ना पड़े, मैं एज एक्सिस बैंक अपने प्रोसेस ऐसे कर दूं कि तुमको अपनी शक्ल दिखानी है, तुम्हारी शक्ल को कॉन्फ़िगर कर ले वो. तो मेरे एम्प्लॉय को, हाँ, फेस आईडी. तो एक एडिशनल कंट्रोल जो मुझे अपने एम्प्लॉय को परेशान करने का एक और जुगाड़ ढूंढना था, वो जुगाड़ ही खत्म हो जाएगा. You will have to build solutions that will make mistakes difficult. होटल्स में देख लो, जिस कार्ड से आप कमरे में घुसते हो वही कार्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में जाता है. सो यू कांट एनी मोर फॉरगेट टू शट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द रूम. अब जैसे आपने वो कार्ड निकाला कमरा से बाहर जाने के लिए, पूरी लाइट ऑफ हो गई. दे हैव मिस्टेक प्रूफ्ड द आइडिया कि आप भूल. पानी डिस्पेंसिंग सिस्टम्स इन मॉल्स, हाथ की आहट आती है तो पानी डिस्पेंस करता है, हाथ हटा लो तो पानी डिस्पेंस करना बंद कर देता है. मुझे लगा कि रिशु भूल जाएगी, तो मैंने वो जुगाड़ कर दिया कि आप भूलो या आपको याद रहे. मेरा सिस्टम अपना जुगाड़ कर लेगा. प्लीज इंश्योर that all of us in our day-to-day life start thinking about mistake proofing everywhere. Mistake proof करना बहुत crucial है if you want to be successful. सब लोग 10 मिनट एक एक्सरसाइज करो, अपना चैट जीपीटी खोलो. Give me 5 examples of mistake proofing from real life that you can implement. Doable, everyone? Neha, Tarun, Jyoti? Yes, sir. 5. Quickly, please.
Sir, I also got the same response from Claude regards the proofing. So your voice is not audible. सर आप म्यूट पे बोल रहे Yes, we can fill up Say that our again. forms by self. तभी हम ये तो कर सकते हैं. समझे नहीं समझे जो पेट्रोल की जो डालने वाला जो ये होता है ना मशीन, वो डीजल वाले से दोनों डिफरेंट होता है। मतलब उसका जो मशीन का जो नोजल होता है जिससे अंदर डालते हैं ना, तो उसमें वो जाएगा ही डीजल नहीं। वाला पेट्रोल गाड़ी में डीजल वाला लेके जाएंगे तो डीजल वाला में जैसे पेट्रोल और डीजल का दो स्टैंड है, एक ही में एक जगह गलती से होता है ना, बिजी है कहीं उठाया उसको लगाने की कोशिश हाँ। करी तो लगेगा ही नहीं उसमें। Others, are you done? Chat पे डालो. डे टू डे लाइफ में मिस्टेक प्रूफ के लिए कुछ सजेस्ट करना था ना सर? हाँ. आई हैव शेयर्ड. Chat पे डाला. हाँ जी. Okay. Block 10-15 minutes daily to review pending tasks. Okay. Set alarm for supplement workout. Plan your meals in advance to avoid unhealthy choices. Set auto pay for bill. ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों करना है? और आप ये सोचो कि आप जैसे लोगों को एक आध करना होता है, मुझे लगभग 32 करना होता है. अगर 32 याद रखूं तो अब तो पेटीएम में मैसेज भी अपने आप आता है क्या? नहीं, हमको चाहिए नहीं, हम तो ऑटो पे लगा ऑटो पे दिया. लगा दिया ऑटोमेटिक उसका पैसे कट उसमें एक मैंने थ्रेशोल्ड लगा दिया कि अगर किसी का बिल 1500 से ऊपर आए तो मुझसे एक बार पूछ ली. बात ऑटो खत्म. में तो पूछ खुद ही वो रहता है. Keep your keys wallet keys wallet in the के लिए same कितना place लगाओ. every day. Absolutely doable. Absolutely doable. सिम कार्ड का ट्रे डिजाइन एब्सोल्युटली गड़बड़ हो ही नहीं सकता. कार सीट बेल्ट वार्निंग, आई स्टिल फील दैट इट कुड हैव बीन बेटर. USB कनेक्टर, यस. ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन का डोर क्लोजर, ठीक. ATM इजेक्शन रिमाइंडर नहीं, मैंडेटरी कर दो. जब तक बाहर नहीं निकलेगा कार्ड तब तक कैश नहीं निकालने दूंगा.
प्रेशर कुकर, सेफ्टी वॉल्व, हाँ करेक्ट। लेकिन इसको डेली लाइफ के बारे में भी सोचो। हाउ विल यू इंश्योर दैट यू, हाँ जैसे अगर ऑफिस जा रहे हैं तो काफ़ी सारे आइटम्स लेके जाना है, तो उसका एक चेकलिस्ट बना के रख सकते हैं फेयर कि फेयर कर सकते हैं, बट ये भी है कि फिर आपके लिए वो एक्स्ट्रा एक काम हो गया। ठीक है, आई डोंट डिसएग्री। मुझे भी ट्रैवल करना होता है तरुण, ऑलमोस्ट एवरी वीक। But I'm sorry to interrupt you. In that case, in fact, even a manual thing is also required कि अगर आप checklist बना रहे हो, then also I have to go back to checklist और मेरे को check करना पड़ेगा। अगर मैं checklist ही check करना भूल गई तो चेकलिस्ट नहीं देख अब ट्रैवल करना है मुझे, कुछ छूट जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो हर बार मेरी वाइफ बोलती है कि तू जब वापस आता है तो कुछ ना कुछ नया खरीद के लाता है, क्योंकि भूल जाता हूँ ले जाना। सो नाउ आई हैव एलोकेटेड दैट वर्क टू हर। अब ये उसका डिपार्टमेंट है तो नहीं छूटता है, बट ऐसे कैसे चलेगा? मैं अंधा हूँ, बिना चश्मे के मुझे नहीं दिखाई देगा, तो व्हाट इफ ये छूट गया? अब मेरे जैसे आदमी से तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ विल यू मिस्टेक प्रूफ। बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोचना होगा कि आज आप एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, हाउ डू आई इंश्योर दैट आई डिड नॉट मिस एनीवन? सोचना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग दोज कंट्रोल्स, जिससे आप अपने मिस्टेक्स का लाइक्लीहुड घटा दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज माई हम्बल सबमिशन, एंड आई एम वेरी, कोरियंस, जापानीज, चाइनीज हमसे इतना आगे हैं। एक छोटा सा फेस मास्क इस्तेमाल करती है मेरी वाइफ, कि अगर वो खांसेगी ना तो खाना बनाने समय द स्पिट विल नॉट गो टू योर एरिया। वो कोरियन आया है, बिल्कुल ब्रीदिंग। अच्छा, उस पर पंखा भी लगा हुआ है कि अगर तुम गर्म, तो बहुत छोटा सा पंखा लगा हुआ है। अरे व्हाई आर दीस कोरियन सो इंटेलिजेंट यार? मतलब they have solution to every problem, I think. Every problem has a solution exist. If you have get the problem, जापानीज तो आर इनसेन। जापानीज तो आर इनसेन। उनके प्रोसेसेस इतने इंटेलिजेंटली बिल्ट हैं, उनको डर लगता है कि फास्ट मेट्रो के आगे कोई कूद के जान दे देगा। अच्छा, मेट्रो जब आने लगती है ना तो गार्ड रेल्स अपने आप ऊपर हो जाते हैं, वो दरवाजे के सामने ही वो एग्जिट एरिया खुलेगा, बाकी सारा ब्लॉक्ड है, कोई खुलेगा ही नहीं। वो अब यहाँ भी लगा दिया ना, यहाँ लगा दिया। लगा दिया। पूरे गाड़ी को पूरे सर नहीं छोड़ोगे वो मेट्रो में, जो नया वाला मेट्रो जितना सब बनाया है उसमें लगा दिया। और आपको ये सोचना खुलेगा। पड़ेगा, और ये आपको सोचना पड़ेगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग मिस्टेक प्रूफिंग। कैसे इंश्योर करोगे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स सब सेफली पड़े हुए हैं? कितना महंगा है, सोच के देख लो। अभी मुझे 2-4 दिन पहले किसी कस्टमर ने बोला कि ऑडिट के लिए अपना लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेट भेज दो। मैं नहीं भेज पाया, मेरे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो सब कहीं रख दिए, पता ही नहीं। और उस क्लाइंट को क्या लग रहा होगा, रिशु तेरे बारे में झूठ बोल रही है। मतलब that you are not certified and you are हाँ, एवी गोली दे रहा था प्रणय। कितना शेमफुल है, आप ये सोच रहे हो? embarrassing. You will have to start thinking in terms of mistake proofing yourself everywhere in life. Systems, processes, organizations, all have to become, and I'm actually very unimpressed. Car making is a very intelligent process, very difficult engineering. But आखिरी intelligent चीज तुमने देखी क्या है तुषार कार में? What is the most intelligent thing that you see in your car? सर जो पेट्रोल पंप पे हम भरवाते हैं ना, वो कैप खोलता है वो, तो आपकी कार जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप उस कैप को नहीं बंद करोगे, ऊपर ढक्कन उसका जो होता है ना। तो nice. ये मैंने रिसेंटली देखा, और मैं मतलब वो भूल गया था करना, और मैं स्टार्ट करा जाऊँ, स्टार्ट ना में लगा क्या पता पेट्रोल में कोई दिक्कत हो, देखा तो वो कैप खुला हुआ था, इसलिए बंद करा, तब चालू हो गई। Taking time क्योंकि उनको सोचना पड़ रहा है कि क्यों क्या बंद है, right? अगर मैं बता दूं हाँ, कि अगर मैं एक छोटा सा और फंक्शन ऐड कर दूं कि वो जब गाड़ी स्टार्ट करो तो स्टार्ट ना हो और आपको एक मैसेज आ जाए, वो बोल दे कि ऑयल टैंक खुला हुआ है। एंड आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। मुझे लगता है मोटरिंग टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है, बट आखिरी इंटेलिजेंट चीज जो मैंने सुनी वो था वाइपर अपने आप चलने लगता है। बिग डील, पानी आएगा तो
वाटर सेंसिंग से चलेगा, हल्का भी बारिश हुआ तो डीजल में। Think more. Think about what you can do. Think about how we improve our business processes. और ये हम बैंकर्स के लिए है, ये हम सब लीडर्स के लिए है सर कि आप अगर जब भी मतलब कहीं जाते हो तो आप जो सामान रेगुलर यूज करते हो वो अपने बैग में ही क्यों नहीं रखते हो हमेशा, ताकि भूलने का चांस ही ना हाँ, हो? शायद लेकिन अगर आप बैग ही भूल जाएंगे तो मुझे भूलने हाँ, की ये बात भी दवाई दवाई खानी पड़ेगी तो तो हर 15 मिनट में सर को वो गजनी वाला रखना पड़ेगा फिर जो याद दिलाता है। आई हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टनर. मेरी वाइफ, अलार्म फेल हो सकता है, मेरी वाइफ नहीं फेल हो सकती है. मैं बाप बेटा ना हम लोग घर में मजाक करते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन चलाए ना तो मतलब 5 बज के हो गए, 5:02 पे नहीं चलेगा वो, 5 बजे ही चलेगा. उसको उसके बेटे का दही ऐसा चाहिए होता है, इसलिए वो 3 बजे रात में ही बाहर से उठा के फ्रिज में रखाएगा. फिक्स्ड है वो. और वो कहीं ट्रैवल करती है तो मेरे लिए जो एसओपी बना के जाती है, मैं लोगों को वो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि देखो प्रेस ये, इसके पहले ये मत करना, स्टेप 1 स्टेप 2. माई वाइफ इज सुपर ऑर्गेनाइज. इसलिए मुझ जैसे भुलक्कड़ के लिए भी लाइफ चल गई, बिकॉज आई एम मैरिड टू द राइट पर्सन. आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर पास्ट 15-20 years now. I have never missed a medicine ever in my life, other than when I am traveling. ट्रैवल के टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होता ही होता है. So I am saying that you will have to build systems that eradicate the ability of mistakes to happen. नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट मिस्टेक सिग्नलिंग का कुछ जुगाड़ करो. फायर रोक तो नहीं सकते थे हम, तो हमने फायर अलार्म्स लगाए. रोक तो नहीं पा रहा है वो, बट एटलीस्ट वो शोर मचा करके. बेस्ट अगर आप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स लगा सको. इंडिया में भी सुनामी आई, जापान में भी सुनामी आई. जापान वाली सुनामी इंडिया की सुनामी से 9 times ज़्यादा बड़ी थी. इंडिया लॉस्ट millions of people. Japan lost 4 people. Why? Because they knew earlier. India is spending a lot of time, lot of money, lot of technology currently building early warning signals. अब आपके फ़ोन में कुछ दिनों पहले आया होगा अजीब सा एक अलार्म, नहीं, which was telling you about natural calamity. 3 घंटे पहले ऐसे करके आ जाते हैं, 2 घंटे. अब देखना, give it another 2 years, we will be almost the best in the early warning mechanisms in the world. The tech stack that has been developed is state of the art. अब उन लोगों ने सही जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया है. कंप्यूटर का इस्तेमाल बेटर डिजाइन बनाने में नहीं, ह्यूमन लाइफ बचाने में होना चाहिए था. Now they have a semi super computer doing these analysis and being able to communicate. Somebody is not using phone. हाँ, तो कोई जुगाड़ आपको उसके लिए भी करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, बिकॉज अच्छा खासा पॉपुलेशन होगा जो फोन नहीं इस्तेमाल करता है. एंड विल दैट अलार्म बी एक्टिव व्हेन यू हैव स्विच्ड ऑफ योर फोन? सोचना पड़ेगा ना आपको, वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी टू बी एबल टू बिल्ड ऑल दिस. फॉर मी एट AIG आई नीड अबाउट 600 लीड्स एवरी मंथ. यू टोल्ड मी मंथ एंड पे कि सर इस महीने का टारगेट मिस हो गया. उल्टा कर दो ना, 600 लीड का टारगेट है तो मतलब 150 पर वीक का टारगेट कर दिया. तो फर्स्ट वीक में ही अगर तूने 150 लीड नहीं रिसीव की तो रेड फ्लैग का टाइम तो यही है ना. हम गलती होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं. सो इफ़ यू टेल मी वीक 1 दैट वी आर नॉट मीटिंग आवर टारगेट, ट्रेजेक्ट्री ऐसी जा रही है कि हम फेल हो जाएंगे, तो वी कैन स्टार्ट पुटिंग कंट्रोल्स राइट नाउ. You should start putting these early warning signals. आपको हर जगह फर्स्ट टाइम राइट होना है, everywhere you have to start thinking about ensuring things are right the first time. अगर अपन फर्स्ट टाइम राइट होंगे तो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस विल वर्क बेटर. हर चीज के बारे में सोचो. क्रेडिट कार्ड लोन का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है. आई एम अ कंसल्टेंट टू HDFC बैंक. मैं उनका कार लोन का प्रोसेस ठीक करने गया था. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि लोन को रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था? प्रणय का स्कोर खराब था. व्हाट इज दैट स्कोर कॉल्ड? सिबिल स्कोर खराब था.
उल्टा नहीं कर सकते हैं। जब मैं प्रणय से फॉर्म भरवा रहा था तो पहला ही क्वेश्चन वही पूछ लूँ, अपना पैन नंबर दो, पैन नंबर डाला, सिविल स्कोर आ गया, सॉफ्टवेयर ही बता दे कि प्रणय इज नॉट एलिजिबल। Civil score should be met the standard. तो झंझट ही खत्म हो गया ना तेरा। पहले तूने प्रणय से डॉक्यूमेंट मांगे, प्रणय ये वाला डॉक्यूमेंट साफ नहीं है, ये वाला डॉक्यूमेंट गंदा है, उसकी बजाय फॉर्म का सेकंड क्वेश्चन नेम पैन नंबर, पैन नंबर को ओके किया, वो सिविल उठा के ले आए, आगे तभी बढ़ने दे जब मेरा सिविल स्कोर वैलिड हो। ये कोई नो लोन इलाका है, कोई नो लोन का प्रोविजन है तेरे पास कि हम गाजियाबाद के इस मोहल्ले में लोन नहीं देते हैं, हम ऐसे प्रोफेशन वालों को लोन नहीं देते हैं, भरने ही नहीं दे फॉर्म। पीपल, आर यू गाइस विद मी? जैसे पिन नंबर डाल, पिन कोड, रिजल्ट। इसके पीछे एक रीजन हो सकता है सर हम्म कि जो सेल्स टीम है उनके टारगेट होते हैं, तो उनको फाइल भरने का टारगेट होता है कि इतना फाइल लेके आना है। दैट्स व्हाई दे माइट बी, हाँ, उनको पता होता है वो फाइल करेक्ट करते हैं। जैसे लीड वाला की वीक वाइज डिवाइड करो, इसको हम ड्राइवेटरी कहते हैं, मतलब इन बैंकिंग टर्म वी कॉल इट ड्राइवेटरी, कि आपके पास इतनी लीड बनानी है अगर आपको, तो वी हैव टू, मतलब आपको पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा डॉट्स को कि पहले कितना बिजनेस करना है, उसके लिए कितने फॉर्म्स फिल होने चाहिए, ऐसे करके। करेक्ट करेक्ट। एवरीवन, ऑल ऑफ अस, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिजनेस प्रोसेसेस है, रिक्रूटमेंट का चैलेंज है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। वो आपको कैसे इंश्योर करोगे कि हर बार आप राइट काम कर सको बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट? नहीं तो आप अननेसेसरी फायर फाइटिंग कर रहे हो एवरी डे। नहीं करोगे तो दैट इज अननेसेसरी कॉस्ट टू यू। एवरीवन विथ मी सो फार? यस सर, यस सर। तो दो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिलॉसफी। कल सेम टाइम 12 से 2 वी विल डिस्कस दिस फर्दर। फेयर पीपल? श्योर सर। Yes, शुरू sir. का Yes, sir. थोड़ा सा शुरू का पोर्शन थोड़ा सा स्लो होगा बिकॉज आई नीड टू, अभी हम ज्यादा गप्पे मारेंगे बिकॉज एक बार लॉजिक्स, आप अपना कॉन्वर्सेशन का तरीका डिसाइड हो जाएगा ना, देन वी विल पिक अप स्पीड। बेस बनाना पड़ता है सर। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो कल मिलेंगे 12 बजे।